इस तरह लग रहा है कि जिद्दां असीं दो ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬੰਦ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ। हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू एक्चुअली वर्ड धर्म था ही नहीं, सनातन धर्म होता था, वैदिक धर्म होता था। हिंदू तो सिंधु के उधर जो लोग रहते थे उसको अरबिक लोग जो है वो सिंधुवासी कहते थे जी। और वो सिंधु वो सा भी बोल पाते थे, तो वो सा का हा बन गया तो हम हिंदू हो गए। लोगों में एक पहचान क्रिएट की गई है कि अगर उनको बचाना है, हिंदू को बचाना है, तो मोदी का साथ देना और इस तरह की विचारधारा का साथ देना जरूरी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है और आपका धर्म खतरे में है। कौन बचा सकता है, कौन सेवियर है, कौन अवतार पुरुष है? तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के दिन में, या कल कोई और आके योगी खड़े हो जाएंगे या कोई और खड़े हो जाएंगे, ये अवतार पुरुष हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के वो बचा सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उसको एक हीरो बनाया जा रहा है कि हिंदुओं का कल की अवतार के, एक तो कल की अवतार मोदी जी थे, एक अब लॉरेंस बिश्नोई को बनाया जा रहा है। ये सब हरकतें, ये सब देखिए, ये सब हरकतें जो हैं ये बचकानी हरकतें हैं। ਪੰਜਾਬ 24/7 ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਲੂ ਵਿਨੀਤ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗਿਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਓਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਾਏਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਰੀਫ 'ਚ ਦੇ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ DC ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਛੱਡ ਗਏ ਔਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆ, ਕੌਣ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, DC ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ IIT ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ IIT ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਵਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਸਮਝਣ ਜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਜੀਨੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨया ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁਸਕੇ ਮਾਰੇਂਗੇ ਵਾਲਾ ਫੰਡਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ रूट काज ਕੀ समझते हो, कित्थों ये शुरू हुए ते क्यों इस कदर खराब हुए? धन्यवाद, पहले तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, और दूसरा आपके दर्शकों से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं अगर पंजाबी में नहीं बोल पा रहा हूं। पंजाबी हूं परंतु और बोलना भी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में संस्कृत वगैरह ज़्यादा चलती थी तो मैं पंजाबी में नहीं बोल पाता। आई एम सॉरी फॉर दिस। जो आपने सवाल किया है उसका जवाब अगर हम ढूंढें पिछले 6 महीने या साल भर की घटनाओं में तो उनमें जवाब नहीं मिलेगा। इसका जवाब जो है वो भारत की एक मानसिकता है, और भारत भी नहीं, एक पार्टी विशेष की जो वहाँ पे राज्य कर रही है काफ़ी वक्त से, और उस जो राइट विंग जो हिंदुत्व, हिंदू नहीं कहूँगा, हिंदू और हिंदुत्व में एक बहुत बड़ा अंतर है जी, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को भी समझना ज़रूरी है। हिंदू एक संस्कृति है। हिंदू एक्चुअली वर्ड धर्म था ही नहीं, सनातन धर्म होता था, वैदिक धर्म होता था। हिंदू तो सिंधु के उधर जो लोग रहते थे उसको अरबिक लोग जो है वो सिंधुवासी कहते थे, और वो सिंधु वो सा भी बोल पाते थे, तो वो सा का हा बन गया तो हम हिंदू हो गए, तभी हिंदुस्तान या वो चीज़ रही। हिंदू धर्म जो है वो एक, सभी लोग जो वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट आए, जैन हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सबके सब लोग जो हैं वो उस देश को बिलोंग करते हैं। हिंदुस्तान एक जगह है, उसमें जो धर्म जो है उसमें जब से वो सावरकर आए, जिन्होंने सावरकर की पहचान इससे देख लीजिए कि उस व्यक्ति ने खुद ही अपने नाम के आगे वीर लगा दिया और अपने को वीर सावरकर कहना शुरू कर दिया। वो एक आइडियोलॉजी जो बनी है वो एक हिंदू सुपरमेसिस्ट, जैसे वाइट सुपरमेसिस्ट होते हैं, हिंदुत्व सुपरमेसिस्ट आइडियोलॉजी बनी। और वो विचारधारा जहाँ पे भी सुपरमेसिस्ट है, जहाँ पे ये आता है कि मेरा धर्म सर्वोपरि है, मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, और बाकी सब लोग जो है, सिखिज्म को तो वो लोग जो इस तरह की विचारधारा है, सिखिज्म को तो वो अलग धर्म ही नहीं मानते, ना वो जैनिज्म वगैरह, बुद्धिज्म, उनको कोई धर्म, वो कहते हैं ये सब हम हिंदू धर्म ही है, और हिंदू धर्म जो है वो सर्वोपरि है। दैट इज दी, उस विचारधारा की लैब जो चली है उसकी प्रोग्रेस, पहले वो लैब भारत में चली, और वो लैब क्यों चली, चाहे वो जब वो नागपुर से शुरू हुई और जो फैलाई गई है, जब वो उन्होंने राम जन्मभूमि से शुरू की और उसको आग को फैलाया, और उन्होंने देखा कि इस आग के बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं कि 2 सीट सन 84 से 92 सीट सन 88 या 89 में 88 सीट पे पहुंच गए, मतलब दे सॉ द प्रोग्रेस। और उसके बाद तो फिर 97 में तो वो सत्ता में भी आ गए। तो वो विचारधारा जो चढ़ाई गई कि धर्म के नाम पे राजनीति जो है, जो पहले मुस्लिम समुदाय में, चाहे वो AIMM वगैरह पार्टी होती थी, या सिख समुदाय में जो पार्टीज होती थी, उसमें इसमें ये हिंदू की पार्टी, और उन्होंने इस तरह से उसको किया
कि हमारी पहचान जो है वो हिंदुत्व की पहचान होगी। उससे जो डेवलप किया है वो पहले लैब उन्होंने इंडिया में चलाई और उसके जब उनको अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स मिले जी और 300 सीट्स, 310 सीट्स, 320 सीट्स, और वो विचारधारा पे चलने 2002 में उसको पूरा का पूरा वो किया गया। द बुचर ऑफ गुजरात वाज लेबल्ड इनटू हिंदू हृदय सम्राट। वो कब बुचर ऑफ गुजरात से हिंदू हृदय सम्राट बन गए, उसको भी, उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो बड़ा वक्त लगा है। वक्त लगा इन द सेंस लोगों में एक पहचान क्रिएट की गई है कि अगर उनको बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, तो मोदी का साथ देना और इस तरह की विचारधारा का साथ देना जरूरी है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने ग्रुप्स बनाए, उसमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड इस तरह से पेश किए जाते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो सर्वोपरि है, हिंदू धर्म की ये अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ है। और फिर जिसकी बेसिस पे ये जो पिछले कुछ दिनों की घटनाएं यहाँ पे भी हुई हैं, या ये जो घटनाएं पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, उस पहले ये है कि आप सर्वोपरि हैं, आप अच्छे हैं, आप में ये अच्छा, ये संस्कृति अच्छी है, और फिर आप कहें कि हिंदू धर्म खतरे में है, आपका धर्म खतरे में है। और आपका धर्म खतरे में है, कौन बचा सकता है, कौन सेवियर है, कौन अवतार पुरुष है? तो वो श्रीमान नरेंद्र मोदी आज के दिन में, या कल कोई और आके योगी खड़े हो जाएंगे या कोई और खड़े हो जाएंगे, ये अवतार पुरुष हैं, ये हमारे हिंदू धर्म के वो बचा सकते हैं। ये विचारधारा की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। कनाडा तो एक स्केपगोट है। कनाडा को तो एक तरह से, आज कनाडा है, कल कोई और देश भी हो सकता है। वो ये नहीं देखते कि विश्व में क्या पहचान होनी चाहिए। एक समय था जब हम एक नॉन अलाइंड देश होते थे, जब हमारी पहचान होती थी कि हम विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, हम पूरी दुनिया को यूनाइट करने की बात करते थे। आज के समय में ये समय आ गया है, और ये देखिए, ये पूरी दुनिया में डिक्टेटोरियल रेजीम्स जो हैं वो काफ़ी फैल चुके हैं। तो आज उन डिक्टेटोरियल रेजीम में ये समय आ गया है कि मैं और मेरा धर्म और मेरी संस्कृति सबसे ऊंचा है, और उसको स्थापित करने के लिए अगर किसी देश के साथ संबंधों को बलिदान भी देना पड़ता है तो वो एक छोटी चीज़ मानते हैं। ये जो चीज़ इंडिया और भारत के संबंधों के बीच में हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ, उसको लोग कहेंगे कि ये ट्रूडो और मोदी की अपनी ईगो वॉर है। दैट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ये सिर्फ और सिर्फ एक वो विचारधारा को स्थापित करने की चीज़ है, यहाँ के समुदाय को तोड़ने की चीज़ है, उनको ये दिखाने की चीज़ है। देखिए, ये जो घटना हुई 3 को, इसको भी उन्होंने ऐसे शो कर दिया कि मंदिर पे अटैक हुआ है, जबकि कोई मंदिर पे अटैक ही नहीं था। तो ये सब एक विचारधारा ऐसी बनाई जा रही है कि लोगों के बीच में एक भय पैदा हो, लोगों के बीच में एक टकराव पैदा हो, और उसका फ़ायदा, उसकी आग पे ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੁਸ ਕੇ ਮਾਰेंगे ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। देखिए, ये घुस के मारेंगे वगैरह ये सब जो है ना, ये वही मैंने जो बात जो कही, जब आप एक सुपरमेसिस्ट सोच में आते हैं, जब आप सोचते हैं मैं जो सोचता हूँ वो सही सोच है, तो फिर आपको देखिए, आजकल के दुनिया में इट्स अ ग्लोबल विलेज। ये घुस के मारना कोई बड़ी तोप चीज नहीं है जी। ये कोई, आप आज की दुनिया में आपके पास टोटल एक्सेस है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेस है, ड्रोन एक्सेस है, आप कहीं भी किसी भी बॉर्डर में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ड्रग माफिया जो है वो तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिनको कहते हैं कि घुस के मार रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो ये मिस्क्रिएंट्स और गुंडा एलिमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, और उसको एक हीरो बनाया जा रहा है कि हिंदुओं का कल की अवतार के, एक तो कल की अवतार मोदी जी थे, एक अब लॉरेंस बिश्नोई को बनाया जा रहा है। ये सब हरकतें, ये सब देखिए, ये सब हरकतें जो हैं ये बचकानी हरकतें हैं, और ये एक गलत सोच है, एक बचकानी सोच है। इससे कोई देश, अगर कोई व्यक्ति या कोई धर्म सोचता है कि इससे उनकी सत्ता का या उनकी पावर का एहसास होता है, मैं समझता हूँ ये कमजोरी है जी। गांधी जी ने हमें हमेशा सिखाया, और जो सही रहा, जिसके बेसिस पे नॉन वायलेंस और सही तरीके से कार्य करना जो है, आप सत्याग्रह की जो वो बात करते थे, या वो बात करते थे कि चुपचाप खड़े होके, उन्होंने कितनी हमको वॉर्स दें, और सारी, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, ये लोग जो भी खड़े हुए हैं, इन्होंने क्या क्या अचीव किया दुनिया में अपनी नॉन वायलेंट तरीके से, और वायलेंस से क्या हुआ है, कौन सा देश प्रगति किया है वायलेंस से? तो ये सब बेकार की सोच है। इस सत्ता प्रदर्शन से कोई शक्ति का रूप नहीं आता। शक्ति जो आपकी सच्ची शक्ति है वो आपके
स्ट्रॉन्ग आपके कैरेक्टर से आती है, और अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप झुकेंगे। जिस पेड़ में फल ज्यादा होते हैं जो वो हमेशा झुका हुआ होता है, एक बैम्बू है जो ऊपर जाता है, ये बैम्बू वाली बातें कर रहे हैं। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੰਪਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਵੇਂ तरह की सोच आ रही है। हमारे देश में यही होने वाला है। इधर भी पता नहीं होने वाला है कि क्या होगा, उसके बाद देखेंगे। पर काफी जगह दुनिया में, एक जगह नहीं है, अगर आप इंग्लैंड की मिसाल छोड़ दें तो ऑलमोस्ट यूरोप में भी ऐसा चल रहा है, मिडल ईस्ट में तो पहले ही ये किंगडम है, बहुत कुछ चल रहा है ऐसा इस्लाम के नाम पे। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਤੇ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤਿਰੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੈਗ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ 1952 ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੈਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਗੜੀ ਬੱਧੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੱਟੜਪਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਆ ਉਹ ਅਨਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ 80% ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ 85% ਹਿੰਦੂ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ 1.5% ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 22-24 ਕਰੋੜ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? मैं देखता हूँ उनका खतरा जो है वो इस आरएसएस नागपुर से खतरा है। सारे ना सिर्फ हिंदू धर्म को, सबसे बड़ा खतरा ऐसे धर्म के ठेकेदारों से होता है। अगर सच में, और अगर आप दर्शक सुन रहे हैं तो आप समझ लें, जो व्यक्ति आपके, मैं एक सवाल गहलोत साहब मैं सबसे करता हूँ सवाल जी, और मैं समझता हूँ वो सवाल, हम इस सब बातों को समझने के लिए वो सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है जी। मैं ईश्वर को नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एनीवेयर। आई बिलीव दैट द स्पिरिट इज देयर व्हिच टेक्स केयर ऑफ एवरीबॉडी, कि हम सब स्पिरिचुअल हैं, हम एक दूसरे के स्पिरिट है जो कार्य करते हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं और आप एक मानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सबसे ऊंचा है और वो सब कुछ देखता है, तो वो ईश्वर सबका है। ईश्वर एक ही है ना, ईश्वर अलग अलग अपनी दुकानें खोल के तो नहीं बैठा हुआ। ईश्वर एक है, और अगर वो सर्वशक्तिमान है तो उस ईश्वर, तो वो ईश्वर सारे बंदों की रक्षा करेगा, सबकी रक्षा करेगा। तो उस बंदे में कहां से इतना अभिमान आ गया, इतना ईगो आ गया कि मैं अपने धर्म का, अपने ईश्वर की रक्षा करूंगा? वो कैसे खड़ा हो जाता है कि मैं हिंदू के लिए रक्षा करूंगा, या मैं सिख धर्म की रक्षा करूंगा, मैं क्रिश्चियनिटी की करूंगा, या मैं मुसलमान की रक्षा? कौन से, किस ईश्वर को रक्षा की जरूरत है बंदे से? उस बंदे में क्या दम जो ईश्वर की रक्षा करे? ये सब चीजें इनकी दुकानें हैं। अगर किसी को खतरा है भारत में, न सिर्फ भारत में, किसी भी देश में, किसी भी दुनिया में, किसी भी समुदाय में, अगर कोई कहता है कि मैं धर्म का रक्षा कर रहा हूं और मैं धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें खड़ा होना है, तो उस दुकानदार से बचो, उससे दूर, उससे 2 कदम दूर जाओ, क्योंकि अगर आपको खतरा है, आपको दूसरे से खतरा नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं उठता। आपको खतरा ऐसी सोच वालों से है, वो आपको कर रहे हैं। आप जाते हैं गुरुद्वारों में, आप अपनी अर्चना करने के लिए, ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आप अपनी पूजा पे ध्यान दो। घर में करते हो पूजा पे ध्यान, आपको वहां पे जाके अगर कोई इस तरह से विचारधारा गुमराह कर रहा है या व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर रहा है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, उसका नतीजा हमने देख लिया। उसका नतीजा जो न सिर्फ उन दिनों में हुआ, बल्कि अभी उसके बाद 4 दिन बाद इस झगड़े के ऊपर, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड के ऊपर, हमने एक व्यक्ति को खो भी दिया, माली साहब को हमने खो भी दिया। ये एक ऐसी, मैं पिछले 10 दिन से हर जगह टीवी चैनल्स, हर जगह बातें कर रहा हूँ, लेख लिख रहा हूँ, लोगों से बातें कर रहा हूँ, पीस मीट्स कर रहे हैं,
वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये तापमान जो भारत में गंदगी फैला चुका है, वो तापमान हमारे बीच में कनाडा में भी फैलाया जा रहा है, अमेरिका में भी, न्यूजीलैंड में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। ये तापमान को कम करना बहुत जरूरी है। इन बातों में ना पड़े। कोई सेवियर नहीं है। कोई अगर कोई हिंदू हृदय सम्राट है तो वो व्यक्ति हो सकता है जो आपको कहे कि हिंदू धर्म सबके लिए है और सबको मैं तो समझता हूं, अगर मेरी सोच लोग ना माने, पर मैं अगर कहूंगा कि अगर हिंदू हृदय सम्राट कोई हो सकता है तो महात्मा गांधी से ज्यादा बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता, जिन्होंने उस धर्म को समझा। तो आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ, हमें ये समय आ गया है कि इन लोगों से बचें, इनकी दुकानों से बचें। और अगर लगता है कि वहां पे जाके ये गंदगी होनी है, अगर गुरुद्वारों में उन्होंने खालिस्तानियों की बात करनी है, खालिस्तानी विचारधारा की बात करनी है, मंदिरों में अगर उन्होंने हिंदू मंदिर खतरे में ये बातें, तो थोड़े वक्त के लिए शांत होकर घर में मंदिर बैठा लो, घर में पूजा रम लो। डोंट फॉल इनटू ऑल दीस ट्रैप्स। दैट्स व्हाट आई से। ਦਿਵੰਸ਼ੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਔਰ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ और उस तो बाद ਜਿਹੜਾ मल्ली ਦਾ मर्डर होया हैगा, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, ऐसा है कैरो साहब, अगर हम एक दूसरे को जानते हैं थोड़ा बहुत जी, मैं वैसे तो काफ़ी सालों से हिंदुत्व के खिलाफ बोलता आ रहा हूँ, पिछले 12-15 साल से जी, और बल्कि उससे पहले से, जब से 2002 की घटना हुई गुजरात की। परंतु खालिस्तान के खिलाफ जो है, जब यहाँ पे पहला रेफरेंडम वगैरह हुआ तब मैंने बोलना शुरू किया जी। और उससे पहले मोदी, जब बेसिकली ये जो यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ, ये सब कुछ ये एक फ्रिंज था। खालिस्तानी तो एक फ्रिंज था, कोई इस तरफ देखता भी नहीं था। ये फ्रिंज को बढ़ावा मिला फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे, जब उन्होंने आम सिख को भी वहां पे खालिस्तानी बोलना शुरू किया और मनोहर लाल खट्टर और दुनिया भर के बीजेपी की लीडर्स ने गंदगी वहां पे फैलानी शुरू की। उससे लोग भड़के और उससे भावनाओं को, जो मॉडरेट विचारधारा वाले लोग हैं, वो भी सोचने लगे अगर हमारे को इस देश में अपनी वो नहीं मिलती, पहचान नहीं मिलती, तो हमें शायद अपनी पहचान का सोचना चाहिए। वो एक विचारधारा बढ़ी। उससे उस विचारधारा का फायदा जो यहाँ पे जो ये फ्रिंज था, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट था, जिसको बेसिकली गुरुद्वारों पे कंट्रोल और पैसों पे कंट्रोल और लोगों की मानसिकता पे कंट्रोल चाहिए था, उसको बढ़ावा मिला और वो और ज़्यादा फैला। उधर से उस विचारधारा के बेसिस पे मंदिरों में भी जो इस तरह के जो हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने भी अपना कंट्रोल ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। दोनों समुदाय जो है वो एक पोल्स, ये जो 3 या 4 की घटना है, ये कोई घटना वो नहीं है कि इंस्टेंटेनियस या स्पॉन्टेनियस है। ये एक लैब है जो काम कर रहा था और जिसका एक पहला विस्फोट जो है वो निकल के सामने 3 को आया। मैं खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट फ्रिंज एलिमेंट हैं उनके खिलाफ 17 सितंबर 2022 को जब पहला रेफरेंडम हुआ, आई वाज द ओनली वन स्टैंडिंग। मैं यहाँ पे ब्रैम्पटन में, कैल्डन के पास ब्रैम्पटन में हुआ, तो वहाँ पे मैं खड़ा था, 50-60 हज़ार लोग थे, अकेला व्यक्ति मैं खड़ा था। उसके बाद 6 नवंबर 2022 को दूसरा रेफरेंडम हुआ, तब हम काफ़ी लोगों को लेके खड़े हुए। पैनोरमा के जब भी खालिस्तानियों के कोई इवेंट्स होते थे तो मैं वहाँ पे खड़ा होता था, उनके सामने काउंटर प्रोटेस्ट। भारत के मॉल्टन गुरुद्वारा में रेफरेंडम हुआ तो उस समय अगेन आई वाज द ओनली वन स्टैंडिंग, तो खड़े रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो खालिस्तानी पीपल, जो खालिस्तानी फ्रिंज के ये लोग हैं, ये कुछ 25, वैसे तो काफ़ी लोग हैं जो करते होंगे, बट अल्टीमेटली मैंने देखा है, मैं जो क्योंकि जानता हूँ, जो GTA में आके जो करते हैं वो 30, 40, 50 लोग, एक ग्रुप है, समुदाय है जो आके ये घटनाएं करता है और जो ये नारे करता है। अब उनको शायद शक्ल से भी पहचानता हूँ, एंड ऑब्वियसली दे ऑल्सो नो मी बाय फेस। जब भी हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने हमेशा कोशिश ये की है कि हम लोग शांति बनाए रखें, नॉन वायलेंट तरीके से करें, और हमेशा कभी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। और मैं इनको जानता हूँ, इनको, क्योंकि इनकी जो लीडरशिप है और जो इनको जो भी पैसा मिलता है और जो भी तरीके करते हैं, इन्होंने भी कभी एक रेड लाइन क्रॉस नहीं की, वायलेंस कभी नहीं की। दे हैव नेवर डन एनी वायलेंस। मतलब वैसे जो भी होती होगी पीछे का, मैं उस प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पे उन्होंने एक रेड लाइन ना क्रॉस नहीं किया। इस बार
जो बंदे खड़े हुए हैं, पहली चीज ये टेंपल के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं था, ये आप सब जानते हैं। अब तो सत्य सामने निकल के आ चुका है कि वहां पे काउंसिलेट के लोग आए थे। इन्होंने गुरुद्वारे में जब काउंसिलेट के लोग आए तो भी प्रोटेस्ट किया इस ग्रुप ने। तो इन्होंने बेसिकली काउंसिलेट के लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और ये बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड तरीके से कर रहे हैं। इस बार कुछ ग्रुप ने, और वो एलिमेंट्स हम सब जानते हैं, मैं तो खैर 100% जानता हूँ, उन एलिमेंट्स ने लोगों को बुलाया, कुछ गुंडा एलिमेंट को भी बुलाया, कुछ सो कॉल्ड हरियाणवी बच्चों को भी बुलाया और उनको खड़ा किया वहां पे। और इस बार ये सब जो मैच्योर लीडरशिप थी वो तो पीछे रही, वो सामने ही नहीं आई। इन बच्चों को खड़ा किया और आमने सामने बिल्कुल खड़ा कर दिया, और वो तैयार थे, तैयार इन द सेंस, झंडों के अलावा अगर आप वीडियोस देखें तो दे हैड मेटल रॉड एंड स्टिक्स आल्सो विद दैट। तो इस बार ये एक, मुझे लगता है, अब देखिए मेरा लगने का बात ये, इसका मैं आई हैव फुल फेथ इन द कैनेडियन पुलिस, और इसकी पूरी मैं तो बार बार कह रहा हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कैसे हुआ, किसने करवाया है। बट दिस सीम्स टू बी नॉट एन इमीडिएट थिंग बट अ प्लान्ड थिंग, कि वहां पे वो वायलेंस के लिए तैयार थे, और जो वो वायलेंस शुरू हुई, यू आर रेफरिंग हिंदू एलिमेंट्स, द हिंदुत्व एलिमेंट्स हु वर स्टैंडिंग देयर एंड द खालिस्तानीज हु वर स्टैंडिंग देयर, उनके बीच में जब वायलेंस शुरू हुई, एंड इट इज अ स्प्लिट सेकंड, अगर आप वीडियो देखें ध्यान से, मैं उसको कई बार देख चुका हूं, ये फैसला लगाना कि किसने किया पहला वार, हिंदुत्व साइड से हुआ या जो जिसको ये इंडिया से जोड़ रहे हैं कि इंडियन साइड से हुआ या खालिस्तानी साइड से, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट वो लड़ाई शुरू हुई और दोनों ने मारा पीटा। उसके बाद जब झगड़े हुए, मारे पीटे गए, तो भैया आप भागना शुरू किया है। अब आप डर के भाग रहे हैं या आपको बोला गया है भागो, अगेन दिस इज समथिंग विच हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। आप भागे हैं तो आप सड़क पे, आपकी बात हो रही है, मंदिर के बाहर सड़क पे ये सब घटनाएं चल रही है, आपको भागना है सड़क पे, और दूसरी तरफ भागो ना, ये सड़क के आप भागते हुए, ये अगेन या वो डर के है या वो सोची समझी बात है, ये समझना पड़ेगा। वो भाग के अंदर मंदिर की तरफ गए और ये लोग उनके पीछे भागते हुए मंदिर की तरफ गए, और फिर वहां पे ये घटना हुई जिसमें पीटा गया। उन्होंने किसी भक्त को नहीं पीटा, नहीं, जब मंदिर के अंदर घुस गए थे खालिस्तानी एलिमेंट्स, बाद में मंदिर के अंदर भी गए। वो इन लड़कों के पीछे, वो मंदिर ऐसा है, ये भागे, और ये जो लड़के भागे, ये भाग के मंदिर के अंदर घुसे, ये भागते हुए मंदिर के अंदर घुसे, और अब दो वो पीछा करते हुए मंदिर के अंदर गए थे। नहीं, मंदिर के अंदर मंदिर वो जो पार्किंग लॉट है, मंदिर का मतलब है मंदिर परिसर, मंदिर परिसर, ऑब्वियसली मंदिर नहीं, मंदिर परिसर भी इटसेल्फ जो है पूरे के पूरा मानना जाना चाहिए। मंदिर परिसर का मतलब है ऑब्वियसली पार्किंग एरिया में घुसे, और वहां से फिर तब तक पुलिस भी आई, और ये लोग भी, वो लोग भाग के और अंदर चले गए, ये लोग फिर, अच्छा, अंदर से मैंने एक वीडियो देखा, अब उसका कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आजकल AI जनरेटेड भी बहुत होता है, उसमें कुछ अंदर से पथराव भी देखा कि बाउंड्री वॉल के इस साइड से पथराव भी हो, जो भी चीज़ रही, एक तरह से उकसाने पे। अब दो जवान लोग हैं, उनके बीच में हुआ मिसक्रिएंट्स, मैं तो मिसक्रिएंट्स कहूँगा, अगर लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो मैं तो उनको मिसक्रिएंट्स कहूँगा, गुंडा एलिमेंट कहूँगा। तो ये हरकत, अब देखिए ये हरकत हुई, ये हमें समझना चाहिए, हम सब लोग समझदार व्यक्तियों को समझना चाहिए कि ये मिसक्रिएंट्स लड़ रहे हैं, ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है, ये गुंडा एलिमेंट की लड़ाई है। हमें इस बात को तूल नहीं देना चाहिए। उस बात को जानबूझ के एडिटेड वीडियोस सब जगह फैलाए गए, उस बात को तूल दिया गया, और तब तक ये न सिर्फ 3 तारीख को, उसके बाद वहां पे लोग खड़े हुए और पुजारी ने जो शब्द बोले और जिस तरह से और लोगों ने भाषण दिए, वो हम सब ने देख रहे हैं और देख चुके हैं। 4 तारीख को जो हुआ, 3 की रात को जो हुआ, चलो तुमने तब भी किया। उसके बाद मैंने 4 तारीख को भी जब हुआ, मैंने कहा पहली चीज़ एडिटेड वीडियोस शेयर करना बंद करें। दूसरा, अगर आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे वक्त में माहौल गर्म है, अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो सबको ठंडा होने की बात, ठंडा होने की जगह वहाँ पे और उकसाने की बात, चलो वो सब नहीं। 2 बातें अच्छी हुई थी सर, हिंदू की तरफ से भी एक नोट आया था और सिख गुरुद्वारा काउंसिल की तरफ से नोट आया था, वो बहुत पॉजिटिव लाइन पे था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि... और उसके बाद उन्होंने उसको सस्पेंड किया पुलिस को, और 2 दिन बाद उसको रीइंस्टेट कर दिया। 2 दिन बाद उसको, वो एक तरह से फिर से भड़काने वाला है कि अब हम चौड़े हो रहे हैं, फिर से अब हम वो करें। उसके बाद आप अभी देखिए 2 दिन पहले या 3 दिन पहले 16 तारीख को एक वेबिनार हुआ है, जिसका भी मेरे पास आया और कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। एक अगेन हिंदू बॉडी बनाई गई है, वो कि हिंदू टेम्पल्स आर इन डेंजर, और ये सब चीज़ें करके वो फिर से ये, तो ये अच्छा, ये सब बातें तो एक तरफ है। अब क्या हुआ, अब इसमें देखिए कि भारत के मीडिया और भारत के प्रधानमंत्री और भारत और बीजेपी का क्या रोल रहा है। उन्होंने इस बात को, मोदी जो है वो मणिपुर पे बिल्कुल शांत है,
2 साल से मणिपुर कहाँ पे इंडिया में है भी या नहीं है, वो तो दुनिया इंडिया को छोड़िए विश्व में है भी या नहीं वो भी उसको नहीं पता। वो इस मंदिर पे अटैक, हमारा मंदिर पे अटैक हो रहा है। अरे भैया तुम कनाडा में अटैक हो रहा है, यू गॉट नथिंग टू डू विद दैट। Canadian law, Canadian politicians are and leaders are very capable of taking care of our problem. तुम एक तरफ तो कनाडा से झगड़े के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हो। उसने मंदिर के अटैक पे ट्वीट किया, न सिर्फ ट्वीट किया, लोगों को भड़काया, बाकी उनके सारे पार्टी के लोगों ने वो किया। मीडिया में, आप भी इंडियन मीडिया में पढ़ता था पिछले, ऐसे लगता था जैसे कनाडा में कोई हिंदू बहुत बड़ा खतरे में आ गया है और इंडो कैनेडियंस बहुत घबराए हुए हैं और परेशान हैं और दुख में, दर्द में है कि हमारी जान खराब हो गई है। इंडियन गवर्नमेंट की सर ऑफिशियल जो आई है ना स्टेटमेंट, उसमें लिखा है कि जो हमारे कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिसर हैं वो पहले ही बहुत टेंस माहौल में काम कर रहे हैं और बहुत खतरे में हैं। ये भी उन्होंने बोला ना उसमें। देखिए, कोई भी, हम ऐसे लीडर्स को देखते थे जो सारी दुनिया में अगर कोई खतरा होता था, देखिए लीडर वो होता है, अगर खतरा भी हो तो तुम अपने दिल में रखो, उसको बातचीत के डिप्लोमेसी के थ्रू सॉर्ट आउट करो और आप लोगों में एक विश्वास पैदा करो कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है। वो लीडर होता है। जो लीडर भड़काए उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि आप समझो कि ये दुकानदारी है, वो आपको शांत करने की। और इस ऐसी चीज़, वो माली जी का मैं उनके अंतिम अरदास पे गया हूँ, माली जी के 2 बच्चे। और आपको मैं बताऊँ सबसे बड़ी बात जो मैं जीवन का कुछ एक्सपीरियंसेस है, नहीं बोलूँगा, उसमें मैं वहाँ पे संगत में गया हूँ, बात कर रहा हूँ कि बड़ा दुख की बात है कि परिवार का, वो पता है उनके लोग साथ में जो लोग थे, जो साथ में ट्रकर से बोले कि 1 नहीं 2 परिवार खराब हुए। 2 परिवारों के दूसरा परिवार राजेंद्र का परिवार, उसके भी बच्चे छोटे हैं, वो भी परिवार से। मैं कहा ऐसे वक्त में भी वो उस परिवार की सोच रहे हैं। पर वहाँ एक इंसिडेंट भी हुआ है सर, वहाँ पर एक इंसिडेंट भी हुआ। मेरा बेटा भी उस में था फ्यूनरल में। वो बोल रहे हैं कि पीछे से कुछ लोग बैठे हुए थे, जब भी वो अरदास खत्म हुई उन्होंने फिर वही शायद काम शुरू कर दिया। ऐसा है, मैं अरदास में जब तक था मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। और मैंने जो लोगों के साथ बात की है वो मैं नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो। लोग देखिए, ऐसा एलिमेंट हर जगह पहुंचता है, परंतु आप माली साहब के परिवार को देखें, उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया है कि हमें पीस चाहिए। हम इन चीज़ों, हम सबसे यही कहेंगे, हमें ग्रेसफुली रहने दें, हमें पीस चाहिए, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना ना। और ना ये कोई चीज़ थी, ये लोगों के बीच में रौला पै गया, जो भी झगड़ा हुआ दोनों के बीच में, इससे पहले ही हम उस बंदे को गवा चुके हैं। मैं वो निज्जर साहब के बेटे का इंटरव्यू देख रहा था, जो मैं आपको बताया सीबीसी में जो है। आप वो इंटरव्यू आपके सब दर्शकों को भी कहूँगा देखें। उनके बेटे को, उनसे बेटे से पूछा गया, उनके बेटे को कहा गया कि अब आप जो है ये खालिस्तान एक्शन का, अब आप निज्जर साहब, क्योंकि वो नंबर 2 थे एक तरह से, कि उनकी जगह ले और उनकी जगह पे आप आए। यू नो व्हाट ही सेज, आई एम अ कैनेडियन एंड आई बिलीव इन पीस, आई गॉट नथिंग टू डू विद दिस। और वो मेडिसिन में, अपना मेडिकल में, डॉक्टरी में आगे बढ़ रहे हैं कि मैंने उसी में ही प्रोफेशन में ही अपने फोकस। अच्छा दिवांशु जी, मैं दिस इज व्हाट कनाडा इज।